नमस्ते बच्चों, सभी को मेरे हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के इकाई 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। I have already done the first part of this chapter in my previous video. I will be sharing the link of that video in this session. So if you have not seen, kindly go through the same. If you're watching my video for the first time, do like, share and subscribe my channel. Also press the bell button for future notification of my videos. जैसे ही मैं साउथ कोल पहुंची, मैंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी. So the moment I reached South Col, what did I do? I started doing the preparation for the next day, like important preparations for my climbing for the next day. मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए. I arranged some food, cooking gas and oxygen cylinder for the next day climbing. जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा. So in the afternoon when Bissa came, he saw me. I was like just boiling the water to make tea. की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे. की, जय एंड मीनू दे वर फार बिहाइंड. मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी. आई वॉज वेरी वरीड. चिंतित मीन्स वरीड. आई वॉज वेरी वरीड. आई वॉज वरीड बिकॉज आई वॉज सपोज टू क्लाइंब द नेक्स्ट डे विथ ऑल ऑफ देम. वे धीरे धीरे आ रहे थे. दे ऑल वर कमिंग स्लोली. वाई? क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे. दे वर कमिंग, they were climbing with heavy burden, heavy items, heavy things along with them, as well as they were climbing without oxygen. बिना ऑक्सीजन means without oxygen. दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया. So after afternoon, what she decided to help the other members, like those who were climbing. She decided to help them, and what she did, she took one juice in one flask and some hot tea in other flask. And what she decided to go down to help them. मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा. That it was very windy, and what snow wind was there. She decided to come out of her camp in that wind itself. जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र के बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई. When I was coming from my I was outside that tent area, my camp area, I met मीनू. की और जय अभी कुछ पीछे थे. की एंड जय, they were a little behind. मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला. आई मेट जय बिलो दिस जेनेवा चोटी. उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की. विथ ग्रैटिट्यूड. कृतज्ञ मीन्स ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड. ही took this chai and all, the tea which she offered, he took that, but what he did, he just tried to stop Bechendri to go further down because that was a little dangerous. मगर मुझे की से भी मिलना था. But she wanted to meet, but I wanted to meet की also. थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा. Just a little more when I climbed down. When I went down, so I saw की also. वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया. When he saw me, he was shocked to see me. तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बेचेंद्री? Why did you take this much of risk, बेचेंद्री? This की asked बेचेंद्री. मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा. I told him like very strongly and with courage. मैं भी औरों की तरह एक पर्वतरोही हूँ. Like others, I am also a mountaineering girl. पर्वतरोही means mountaineering. इसलिए इस दल में आई हूँ. That's why I am in this group. शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ. Physically I am fit. शारीरिक means physically.
इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? So why should I not help my team members when I'm physically fit and I'm here in this group? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई. He laughed. He laughed, and पेय पदार्थ means drinking item. With that drinking items which he was carrying, he took that and he like his thirst was, he could handle the thirst. लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया. But he didn't allow him to take the kit which he was holding. थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से प्लाटो और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए. आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द साउथ कोल, प्लाटो एंड बिस्सा केम डाउन टू मीट अस. और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी. और हम सब साउथ कोल पर, एंड फॉर अस लाइक इन द साउथ कोल कुड फाइंड सम सेफ एंड सम स्पेस टू रिलैक्स. उस पर लौट आए एंड वी केम बैक टू दैट साउथ कोल. साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है. वाई साउथ कोल इज फेमस फॉर? इट इज फेमस लाइक इट इज फेमस हाउ, like it is the hardest part on the earth. South Pole is the hardest part on the earth and it is famous for that only. अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई. नेक्स्ट डे आई woke up at morning 4 o'clock. बर्फ पिघलाया और चाय बनाई. आई मेल्टेड द आइस एंड मेड टी. पिघलाना मीन्स मेल्टेड. कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद, like what she had in her breakfast, a little biscuit and half chocolate. हल्का नाश्ता means light breakfast she had. मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी. Almost around 5:30 I just came out of my tent. अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था. अंगदोर्जी was standing outside and nobody was there near to him. अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था. So अंगदोर्जी was supposed to climb without the help of without oxygen. लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं. But he was just climbing without oxygen. So because of that his legs get very cold. Okay. इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था. So just because of that he could not stand at the height for a long time, and during night he cannot and during night also he doesn't want to go to the peak, yeah, on the peak camp. He could not stay there also. इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था. So he had only 2 options, either to go to that peak and come on the same day to this place on the same day, or he will have to quit the idea of going to that peak. वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था. So he wanted to climb immediately. और उसने मुझसे पूछा, and he asked me, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी? Whether would I like to go with अंगदोर्जी with him? एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा. So the same day going to that peak and coming back to this place, it is very difficult and very effort. You have to put a lot of hard work and effort. इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौटकर आने का भी जोखिम था. एंड इन केस इन बिटवीन समथिंग हैपन्स, लाइक हिज लेग्स गेट फ्रीज्ड और समथिंग हैपन, देन शी विल हैव टू टेक अलोंग विथ हिम, because she cannot leave him like that. She will have to hold him also. So that was more risky. जोखिम means risky. मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था, but still I had trust on अंगदोर्जी. विश्वास means trust. और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी. And I was confident. And what she was very confident that आश्वस्त means confident about his climbing skills and that he will climb easily. She was very confident about him. अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था.
So apart from this Angdorzi, nobody was there. Nobody was ready to go with her at this time. सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था. So at 6:20 they came out of the camp for this climbing. So it was always, that darkness was not there. It was always the morning started. हल्की हल्की हवा चल रही थी. Light breeze, like wind was that moving. लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी. बट इट वॉज वेरी कोल्ड एज वेल. मैं अपने आरोही उपस्कार में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी. लाइक दैट ड्रेस you generally wear when you climb, you wear a dress for that. She was very comfortable, surakshit, safe, and she was feeling that warmth in that. हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. So without that rope we started climbing. अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ रहे थे with a proper speed. He was have a calculated speed. In that speed only he was climbing. और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. एंड फॉर मी ऑल्सो क्लाइंबिंग अलॉन्ग विद देम आई डिडंट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. जब जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशों की चादरें बिछी हो. दैट बर्फ की सीधी ढलाऊ चट्टानें, इट्स लाइक स्टीप एंड द स्ट्रेट रॉक्स ऑफ आइस. इट वाज लाइक वेरी strong. Sakt means it was very strong. मानो शीशों की चादर बिछी हुई हो. How it was feeling? Shisha means mirror. She was feeling like it was like a mirror carpet. That much strong it was. She was feeling it's like a mirror, and it is like a straight mirror carpet. हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा. So what they used? बर्फ काटने का फावड़ा. It is an instrument basically used to break the ice. So they have to use that instrument to break the ice. और मुझे इतनी सख्त से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती फावड़े के दांत काट सके. So she used that with us, like with very strongly she used, so that at that time only they will be able to break that break that ice. और उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके. सो दैट स्ट्रॉन्ग शी यूज्ड टू यूज, देन ओनली दैट द फावड़ा विल बी एबल टू ब्रेक दैट आइस विच इज ऑन दैट अर्थ. मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया. इट इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेस. सो ईच एंड एवरी स्टेप शी टुक वेरी केयरफुली. 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए. Like before 2 hours, within 2 hours only they reached the peak camp. शिखर means peak camp they reached. अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ. अंगदोर्जी just turned back and he asked me that whether I am tired or not. थकना means tired. मैंने जवाब दिया नहीं. I told him no. जिसे सुनकर वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. Hearing that, he was very surprised. आश्चर्यचकित means he was very surprised and he was very happy. आनंदित means happy. उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे. What he said, he told like before this the camp which came, they took almost 4 hours to reach this place. और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे. एंड इन दिस स्पीड ओनली इफ वी क्लाइंब वी विल बी एबल टू रीच द पीक बिफोर आफ्टरनून 1 o'clock. प्लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था. प्लाटू वॉज कमिंग जस्ट बिहाइंड अस. और जब हम दक्षिण शिखर के नीचे आराम कर रहे थे एंड वी वर टेकिंग रेस्ट ऑन दैट साउथ पीक, वह हमारे पास पहुंच गया. ही रीच्ड लाइक टुवर्ड्स अस. थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की. आफ्टर हैविंग स्मॉल सम टी वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग अगेन. प्लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था. प्लाटू बॉट अ नायलॉन रोप ऑल्सो. इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े. सो मी एंड अंगदोर्जी टुक द सपोर्ट ऑफ दैट रोप फॉर क्लाइंबिंग. जबकि प्लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला.
And what Plato was doing, he was just holding that रस्सी with one hand and he was like climbing in between. उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी. So why he holded that रस्सी? Not for his for himself. He just holded that for to get the balance or just for to make them comfortable, both अंगदूरजी and बेचेंद्री. प्लाटो ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों में के लिए सामान्यत आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी. एंड व्हाट प्लाटो रियलाइज्ड this for this climbing at this here, how much oxygen is required? The level of oxygen is 4 liter per minute. And what, how much she was using? She was only using 2.5 liter of oxygen per liter, so which is very less. So he noticed that, ध्यान दे, he noticed it, and she was only using 2.5 liter instead of 4 liter per minute. मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी. सो द मोमेंट ही इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, इट वॉज एन इनकम्प्लीट. आपूर्ति मीन्स इनकम्प्लीट. व्हेन ही दैट अनकम्प्लीटेड ऑक्सीजन लेवल, व्हेन ही इंक्रीज्ड इट, she realized, महसूस मतलब she realized that this much difficult climbing, now it became more easy for her. आसान means it became more easy for her. दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई. Now that south peak, the level of air or the level of wind started increasing. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे. So that wind, what it was blowing, it just like when it is very storm. Have you seen that dust particles? It's moving in the, around. So the same way this snow, it was like a dust particle. It was flying all over, all around. So because of that, what happened? जिससे दृश्यता शून्य तक हो गई थी. द विजिबिलिटी वॉज इक्वलेंट टू 0 बिकॉज इट वॉज फ्लाइंग ऑल ओवर, सो दे कुड नॉट सी एनीथिंग. सो द विजिबिलिटी वॉज इक्वलेंट टू 0. अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है. सो शी जस्ट चेक मेनी टाइम्स. अनेक मीन्स मेनी टाइम्स, लाइक आफ्टर सम टाइम देयर इज नो मोर फर्दर क्लाइंबिंग. शी कुड नॉट सी दैट. ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था. दैट स्टीपनेस, लाइक इट वॉज बिल्कुल, इट वॉज फ्लैट नाउ. सो शी कैन नॉट सी एनी मोर हाइट्स. सो शी इज सीइंग द रूट, इट्स लाइक टोटली फ्लैट. मेरी सांस मानो रुक गई थी. वॉट हैपेंड? हर ब्रीथ वॉज, इट्स लाइक ऑलमोस्ट स्टॉप्ड. वाई? मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नज़दीक है. शी रियलाइज दैट सक्सेस इज वेरी नियर टू हर. नज़दीक मीन्स नियर. 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. When she reached the Everest, 24th May 1984 at 1:17, she was standing on the peak of that Everest. एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी. So who was she? She was the first lady to reach the Everest peak. एवरेस्ट शंखु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ खड़े हो सके. On that peak, Everest peak, there was not that much sufficient space was not there. Like 2 people cannot stand together. चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान और देखते हुए हमारे सामने पृष्ठ सुरक्षा का था. सो लाइक फ्रॉम देयर ऑलमोस्ट 1000 meters. It was like a straight steep. Okay, so for them it was the main thing was the question of their safety. हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया. So what is the first thing they did? They took their favda, that instrument to break the ice. They took it and they started digging that ice and they made a safe space for them to stand. इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी. And after that, like I just bend my knees and I sit there. बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया. And like I kept my forehead on that sagar mata. Taj, it is like Taj means your crown.
So on that, I just kept my forehead and I kissed the crown of सागर माता. बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला. So without getting from there, I took from my bag the mother goddess Durga's photo and Hanuman Chalisa. It is again a book in the for like Hanuman Chalisa. It's a religious book only. She took that a small book and she wrapped it in a red cloth. मैंने इनको अपने साथ लाल कपड़े में लपेटा. छोटी सी पूजा अर्चना की. I did a small पूजा और इनको बर्फ में दबा दिया. And I just put it inside that ice. आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया. So it was a very happy moment for me, happiest moment for me, and I just thought about my parents. जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी. Then I just got up from there and just I folded my hand and just turned and with respect I just bowed in front of my leader. That time who is his leader? Angdorji. अंगदोर्जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया. Angdorji who encouraged her. Protsahit means who encouraged her and who took him towards his aim. Lakshya means aim. Because of him only she was able to reach that aim. मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी. And I congratulated him to climb the Everest without oxygen for the second time. उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया. He whispered in my ears and he just hugged me. फुसफुसाया means whispered, गले लगाया means hugged. दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की. Sister you climbed well. मैं बहुत प्रसन्न हूँ. I am very happy. कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेनी शुरू कर दी. After that सोनम पुलजर reached and they all started taking the photo. इस समय तक प्लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर चारों की होने की सूचना दे दी थी. So by that time this Plato already informed the leader who their neta Colonel Kuller, he already informed them that these four have already reached the Everest. तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया. दैट टाइम दैट वॉकी टॉकी वाज गिवन टू विजेंद्री. खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे. कर्नल खुल्लर वाज वेरी हैप्पी विथ आवर सक्सेस. मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड सेड, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ. फॉर दिस सक्सेस आई वॉन्टेड टू कॉन्ग्रेचुलेट योर पेरेंट्स. वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है. नाउ व्हाट ही सेड, दैट कंट्री इज प्राउड ऑफ यू. और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा. नाउ यू आर गोइंग टू अ वर्ल्ड. Now it is a new world for you. When you climbed this world, it was totally different for you. Now when you enter that world again, it will be a totally different world for you. With this, we have finished the chapter. Hope you all understood the chapter well. In case if you have any doubt, you can send your query to my comment box. I will review and reply the same. So we will meet again in the next session with a new chapter. Till then, take care and bye.